Good morning, students. So I am again in front of you with the seventh lecture on the topic national income and related aggregates. So in this class, we shall see the income method of estimating the national income. So let's start. So methods of estimating national income. So this we have seen कि जो इनकम होती है इकोनॉमी में वो 3 फेजेस में फ़्लो करती है. देन इनकम फ्लोज इन 3 फेजेस इन द इकोनॉमी, दैट इज़ प्रोडक्शन फेज टू इनकम जनरेशन फेज, एंड then income generation phase to disposition phase, and again the income comes to the production phase. So this way the income flow between these 3 phases, this is known as circular flow of income. Then if we so we can estimate the national income at 3 phases, that is income phase, disposition means the expenditure phase, and production phase. So there are 3 methods of estimating national income, that is income method, expenditure method, and the production or value added method. So there are 3 methods: income method, expenditure method, and value added method. It is also known as output method. So one by one we shall discuss. So today we shall discuss only the income method. Okay, so let's start with the income method. Few points that we must remind, though we have done all these points in our previous lectures. So factor income. What is factor income? It is the income received with the factors of production for rendering the factor services in the process of production. So factor income is included in the national income. Then transfer income. Transfer income, it refers to the income received without rendering any productive service in return. So means for this income we do not render any service in return, means these are one-sided. This is one-sided income. No goods or service is exchanged with it. So transfer income is not included in the national income. Then operating surplus. What is operating surplus? So it is the another term used for factor payment. It refers to the sum total of income from property, that is rent, royalty, and interest, and income from entrepreneurship, that is profit. So operating surplus means it is the sum total of rent, royalty, interest, and profit. So in the layout, in the flow chart below it is given. So operating surplus, it is the sum of 2 types of income, that is income from property and income from entrepreneurship. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज़ रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट. रॉयल्टी कुछ क्वेश्चंस में दी होती है लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं दी होती, बट ध्यान रखिए रेंट जो होता है ये अर्थ का ऊपरी भाग इस्तेमाल करने के लिए पे किया जाता है, लेकिन अगर हम अर्थ के अंदर हम कुछ जो इंटीरियर अर्थ का हम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो वी हैव टू पे द रॉयल्टी. लाइक हम माइनिंग करते हैं, एक्वायरिंग करते हैं, फॉर दैट द रॉयल्टी इज़ टू बी पेड. ओके. So and interest, it is the income from the capital. So these 3 income are known as income from property, or income from entrepreneurship है profit. So अगर हम rent, interest, profit इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है operating surplus. Then income method में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं domestic income. Domestic income जिसे NDP at factor cost कहा जाता है. सो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और एक मिक्स्ड इनकम इंक्लूडेड होती है. ठीक है, तो जो रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं. ओके. मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस की होती है. हालांकि मिक्स्ड इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सभी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, लेकिन इनको ये लोग अलग अलग से कैलकुलेट नहीं कर सकते. ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खुद को एम्प्लॉय किया हुआ है, लाइक शॉपकीपर है, जो डॉक्टर है उसका सेल्फ क्लिनिक है, मींस ही इज़ प्रैक्टिसिंग इन हिज ओन क्लिनिक. देन जो एडवोकेट्स हैं, तो ऐसे लोग जिन्होंने खुद को एम्प्लॉय किया हुआ है उनकी इनकम मिक्स टाइप की होती है, बिकॉज दे कैन नॉट सेपरेट their income in form of compensation of employees, rent, interest and profit.
Now the income method. So first the domestic income is to be calculated. So domestic income is the sum total of factor income generated within the domestic territory of the country. It is equal to NDP at factor cost. So it is NDP at factor cost. You can see NDP at factor cost. इसको हम उल्टे पढ़ना शुरू करते हैं. Factor cost. Factor cost means it is the sum total of factor income. Factor cost means it is the sum total of factor income, and it is domestic product. Domestic product means it is generated within the domestic territory. एंड जब फैक्टर कॉस्ट पे जब हम फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर इनकम का टोटल लेते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता. दैट्स वाई दिस कंसेप्ट इज़ नेट. सो इट इज़ domestic income, sum of domestic income is known as NDP at factor cost. Okay, means it is the factor income generated within the domestic territory. Then another concept is the national income. So what is national income? It is the sum total of factor income received by normal residents of an economy in a year, and it is equal to NNP at factor cost. So national income, in national income we take the income of normal resident. Again it is at factor cost. It is at factor cost. ये factor cost पे होती है. Factor cost means it is the sum total of factor income. And second thing is कि it is national product. National product क्या कहता है हमें? National product कहता है कि it is the sum total of income earned by normal residents. ठीक है, और ये factor cost पे है तो naturally ये net है. So it is जो national income होती है it is NNP at factor cost. Now the income method. So while estimating national income with this method, first the NDP at factor cost is to be calculated. पहले हम NDP at factor cost calculate करेंगे. Means the factor income generated within the domestic territory. Remember it is a factor income generated within the domestic territory, और domestic territory में resident firm भी होती हैं और non resident firm भी होती हैं. So residents और नॉन रेजिडेंट्स फर्म्स और पर्सनस, इन दोनों की इनकम चाहे वो हमारे देश के रेजिडेंट हैं चाहे हमारे देश के नॉन रेजिडेंट हैं, लेकिन अगर वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी फैक्टर इनकम को हम इसमें शामिल करेंगे. So this is the income generated within the domestic territory by residents as well as non-residents. So this I have already told you. Then आफ्टर एस्टिमेटिंग द NDP एट फैक्टर कॉस्ट यानी डोमेस्टिक इनकम को एस्टिमेट करने के बाद हम उसको चेंज कर लेते हैं नेशनल इनकम में. और नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? याद रखिएगा, इट इज़ इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट. सो इनकम मेथड. सो फर्स्ट डोमेस्टिक इनकम इज़ टू बी कैलकुलेटेड. मीन्स डोमेस्टिक इनकम इज़ दिस वन, दैट इज़ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा डोमेस्टिक इनकम, दैट इज़ NDP एट फैक्टर कॉस्ट. और फिर हमें बनाना है इसका NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना है. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करके. सो इफ़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ एडेड इट विल बिकम नेशनल इनकम NNP एट फैक्टर कॉस्ट. ओके, सो अगेन लेट्स स्टडी again the compensation of employees plus rent plus interest plus profit plus mixed income is equal to NDP at factor cost. Remember अगर रॉयल्टी दिया है तो रॉयल्टी भी इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में रॉयल्टी नहीं दिया होता. सो दिस इज़ हाउ द NDP at factor cost is calculated, यानी डोमेस्टिक इनकम. देन इस डोमेस्टिक इनकम को हम चेंज करेंगे किसमें? ये डोमेस्टिक इनकम इस तरह से भी दी हो सकती है, वेजेज एंड सैलरीज, यानी आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ अलग से दिया नहीं हो सकता, अलग अलग पार्ट उसके दिए हो सकते हैं. तो आपको करना पड़ेगा वेजेज एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. और प्रॉफिट के भी 3 पार्ट हो सकते हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. सिमिलरली रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं. कई बार रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से कोई भी एक पार्ट नहीं दिया होता लेकिन वहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस लिखा होता है, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे इन तीनों के स्थान पर, ठीक है. और फिर प्लस करेंगे मिक्स्ड इनकम यदि दी हुई है तो, और इनको प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट. और फिर NDP एट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे, क्योंकि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को NDP एट फैक्टर कॉस्ट को हमें
NNP एट फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया जाता है। ये हमने पिछली क्लास में हमने देखा। ओके, पिछले आई थिंक जो हमारा जो वीडियो था, वीडियो नंबर 5 में। ओके, नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जब एस्टिमेट करते हैं तो जो CSO है ये कैसे इसको एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो इकॉनमी को क्लासीफाई करता है। ठीक है, इकॉनमी को क्लासीफाई किया जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद वो फैक्टर इनकम को क्लासीफाई करता है। फैक्टर इनकम क्लासीफाई की जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम में। फिर क्या किया जाता है, हर सेक्टर में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम फाइंड आउट कर लिया जाता है और इनको ऐड करके हम थर्ड स्टेप करते हैं एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। यानी ऊपर जो इनकम है, फैक्टर इनकम जनरेट हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसको प्लस कर दिया जाता है और ये हो जाती है डोमेस्टिक इनकम, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद इसको नेशनल प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है क्योंकि हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ टू बी चेंज इनटू नेशनल प्रोडक्ट बाय एडिंग net factor income from abroad to it. So this is how the national income is estimated. But here some of the income has to be included, some of the things has to be taken care of. कौन सी इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे? ऑल द ट्रांसफ़र पेमेंट्स और ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम हम नहीं शामिल करेंगे क्योंकि ये वन साइडेड होती है, सिर्फ अर्नड इनकम ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। देन इलीगल इनकम हम नहीं शामिल करेंगे। इलीगल इनकम जैसे स्मगलिंग से इनकम या गैम्बलिंग से इनकम, ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, इनसे इनकम हम शामिल नहीं करेंगे। विंडफॉल गेंस जैसे लॉटरीज़, जो लॉटरीज़ होती हैं दे आर विंडफॉल गेंस, यानी जिससे हमें एकदम से हमें पैसा मिल जाता है विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विसेज, तो इसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जितने भी टैक्सेस हैं लाइक डेथ ड्यूटीज़, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स जो हम अपनी इनकम में से पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स क्योंकि ये प्रॉफिट पे लगता है, सिमिलरली इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, तो इनकम या प्रॉपर्टी में से जो हम टैक्स पे करते हैं वो भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते क्योंकि ये भी ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, नाउ प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड। सो व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विद द इनकम मेथड। सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस? नंबर 1, ट्रांसफ़र इनकम विल नॉट बी इंक्लूडेड। ये क्वेश्चन आ जाता है CBSE में, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो नेशनल इनकम एस्टिमेट करते समय हम उसमें ट्रांसफ़र इनकम नहीं शामिल करते। क्यों नहीं शामिल करते, इसका कारण भी आपने लिखना है, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम एक तरफ़ा होती है, इसके बदले कोई फैक्टर सर्विस रेंडर नहीं की जाती। देन इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। सेकेंड हैंड गुड्स को बेचकर जो इनकम मिलती है उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है वो उस टाइम पर इंक्लूड हो चुकी होती है जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुई होती हैं। ठीक है, सो हम सिर्फ एक साल में जो फैक्टर सर्विसेज के द्वारा फैक्टर इनकम मिलती है उसे ही हम शामिल करते हैं। ओके, सो जिस साल हम इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, उस साल में जनरेटेड गुड्स की ही इनकम जनरेशन हम ऐड करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू इनकम। सो उसी साल जो वस्तुएं प्रोड्यूस हुई हैं उनसे जनरेटेड इनकम को ही इंक्लूड करते हैं। जो उससे पहले साल वस्तुएं प्रोड्यूस हो चुकी हैं उनसे जनरेटेड इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते। जो सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं वो पहले के साल में प्रोड्यूस हो चुकी होती हैं और उनकी जो वैल्यू होती है या उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो उस साल की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड हो चुकी होती है। सो then income from the sale of share bonds debentures, this will not be included in the national income. Similarly share bond debentures को बेचा जाता है स्टॉक मार्केट में, तो उससे प्राप्त जो इनकम होती है उसे भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इससे भी किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं होता। सो बाय सेलिंग शेयर्स बॉन्ड डिबेंचर्स it will not contribute to the production of goods or services, it merely चेंज द ओनरशिप। यदि आप शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेचते हो तो इससे शेयर्स की सिर्फ ओनरशिप चेंज होती है, पहले ये शेयर आपके थे अब किसी और के हो गए। सो इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते क्योंकि इससे किसी भी वस्तु या सेवा के उत्पादन में मदद नहीं मिलती। लेकिन
पुरानी वस्तुओं को बेचकर जो कमीशन पे किया जाता है, या सेल जो शेयर्स और डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को बेचने के लिए जो शेयर दलाल को ब्रोकरेज फ़ीस पे करनी पड़ती है, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो कमीशन एजेंट है, जो ब्रोकर्स हैं, उनको जो ब्रोकरेज फ़ीस मिल रही है वो उनकी सर्विसेज के बदले मिल रही है, जो वो सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं. सो दैट्स वाई इट विल नॉट बी इट इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ओके, सो कमीशन पेड एंड द ब्रोकरेज फीस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम. इट विल बी इंक्लूडेड because it is paid for the services that they render in selling the second hand goods or in helping to sell the shares, bonds or debentures. Then is illegal income, जैसे स्मगलिंग, गैम्बलिंग एट्सेट्रा, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि ये इलीगल इनकम है, ये अनअकाउंटेबल इनकम है, हमें नहीं पता चलता कि कितनी इनकम हुई है कितनी नहीं होती. और दूसरी बात, ये ब्लैक इनकम होती है. सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड, इट इज़ इलीगल इनकम. तो इलीगल सोर्सेज से कमाई गई इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते. देन विंडफॉल गेंस, जैसे लॉटरीज़ है, इनको भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसके बदले भी कोई फैक्टर सर्विसेज रेंडर नहीं की जाती. सिमिलरली सभी प्रकार के टैक्सेस, जैसे डेथ ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे इनकम या प्रॉपर्टी में से पे किए जाते हैं, इनको हम शामिल नहीं करते. टैक्सेस क्योंकि एक तरफा होते हैं, इसके बदले भी कोई वस्तु या सेवा नहीं उत्पादित होती, इसलिए हम इनको शामिल नहीं करते. दूसरा ये कि जो इनकम टैक्स है, दो इट इज़ पेड फ्रॉम द इनकम, सो इनकम हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, तो यदि हम इनकम टैक्स भी शामिल करेंगे तो इनकम 2 बार कैलकुलेट हो जाएगी, इसलिए भी इनको हम शामिल नहीं करते. ओके, इज़ इट क्लियर? सो दिस इज़ द इनकम मेथड. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड. सो तब तक के लिए लेट्स हैव ब्रेक. तो आप इसको ध्यान से कीजिए, इसमें 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं. दिस इज़ फॉर योर होमवर्क. नंबर 1 इज़ आपने डेफिनेशन लिखनी है डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम की. देन आपने लिखने हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, फिर नीचे उसका फॉर्मूला भी लिखना है. देन आप लिखेंगे कि व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट मस्ट बी टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड. ठीक है, सो दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय.